Welcome to LRNR classes. Today we are going to learn a new prose of class 5 from CBSE course from unit number 6, and the name of the prose is The Talkative Barber. The Talkative Barber. तो इस प्रोज में होता ये है कि एक किंग होते हैं, एक राजा होते हैं, सुल्तान होते हैं, और वो एक बार्बर यानी नाई को अपने सिर को मुंडन कराने के लिए बुलाते हैं अपने किंगडम में। तो ये किंग को ये नहीं मालूम होता है कि वो जो बार्बर जिसे इन्होंने बुलाया था अपने किंगडम में वो बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा बातें करता है। तो इस प्रोज के थ्रू हम ये लर्न करेंगे कि ये टॉकेटिव बार्बर ने कैसे ये किंग को अपसेट किया, और लास्ट में ये बार्बर ने ये किंग का सिर मुंडन भी किया या मुंडन नहीं किया, इसके बारे में हम ये प्रोज के थ्रू लर्न करके जानेंगे। सो लेट्स लर्न दिस प्रोज इन डिटेल। Long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. His queen was a good storyteller. बहुत समय पहले एक राजा रहते थे और उन राजा का नाम था शहरयार, और वो राजा एक बड़े से राज्य के राजा थे, एक बड़े से लार्ज किंगडम के राजा थे। हिज क्वीन वॉज ए गुड स्टोरी टेलर, और वो राजा की जो पत्नी महारानी थी एक बहुत ही बड़ी अच्छी स्टोरी टेलर थी, यानी बहुत ही अच्छा कहानियाँ बताती थी। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग। हर रात उनका यही प्रक्रिया होता है कि राजा को हमेशा हर रात वो कहानियाँ सुनाती। शी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरी। शी नरेटेड, नरेट का यानी टेलिंग स्टोरी। आपको किसी चीज़ के बारे में पता है और आप किसी को बता रहे हैं, उसी को बोलते हैं नरेटेड। सी नरेटेड कौन कौन से स्टोरीज वो बोलती थी? सी नरेटेड एंशियंट पर्शियन एंड अरेबिक folk stories. This is one of the stories from the Arabian Nights. Read this story about a man who cannot stop talking. और ये उन कहानियों में से एक कहानी जो रानी ने अपने राजा को सुनाया था, वो कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं from the Arabian Nights. तो read the story about a man who cannot stop talking. तो इस स्टोरी में हम एक आदमी के बारे में पढ़ेंगे जो कि है टॉकेटिव बार्बर, और जो कभी भी अपने आप को रोक नहीं सकता बिना बातचीत किए। इन द सिटी ऑफ कासगर lived a barber who was a great talker. Once the sultan called the barber to shave his head. The barber started talking non-stop instead of shaving him. The sultan got angry. When are you going to stop talking and begin to do your work? The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer, for everyone says I am quiet. I have 6 brothers, whom you might call chatterers. Their names are Bakban, Bakbariya, Bakbak, Al-Khuz, Al-Nashi, Shakabak. One is humpbacked, one is toothless, one is half blind, one is quite blind, one is deaf, and the other has defect in his speech, and they all are great talkers. But I am youngest of my family, and I am very quiet and sparing with words. Give him 3 pieces of gold, the sultan cried, losing all patience, and send him away. I will not be shaved today. My master, cried the barber, it was not I who came to seek you. It was you who ordered me to come. So I will not quit your home till I have saved you. He then began narrating another story which lasted half an hour. Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the sultan. When he saw that the sultan was really angry with him, the barber said, Oh master, do not be angry. I will begin to save you. Saying this, he washed the sultan's head and began to shave. But he had not touched him even 4 times with the razor. When he stopped and said, My master, you are acting hastily in this matter.
Go on saving me, speak no more, ordered the Sultan. Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well what you were going to do. In the city of Khasgar lived a barber who was a great talker. तो एक शहर था जिसका नाम था खासगर, और वहाँ पे एक बार्बर यानी नाई रहता था जो कि बहुत ज़्यादा बोलता था, बहुत ज़्यादा बातें करता था. Who was very talkative, great talker. Once the Sultan called the barber to shave his head. तो एक दिन जो राजा थे, सुल्तान थे, उन्होंने उस बार्बर को बुलाया टू सेव हिज हेड. टू सेव हिज हेड यानी अपने सिर से बालों को हटवा के मुंडन कराने के लिए सुल्तान ने उसको बुलाया. The barber started talking non-stop instead of saving him. और जब वो सुल्तान के राजमहल में पहुंचा उनके हेड को सेव करने के लिए, वो सेव करना तो स्टार्ट नहीं किया, लेकिन पहुंचते ही राजा से मिलने के बाद ही नॉन-स्टॉप उसका बातें चलने लगी. The Sultan got angry, क्योंकि उसको बुलाया गया था हेड को सेव करने के लिए. वो सेव तो नहीं कर रहा था लेकिन नॉन स्टॉप बातें कर रहा था. तो राजा जो सुल्तान थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगे. When are you going to stop talking and begin to do your work? और वो गुस्से में बोले, कब आप अपना बातचीत करना बंद करोगे और अपना काम करना शुरू करोगे? The barber replied, You do me an injury by calling me a chatterer, for everyone says I am very quiet. I have 6 brothers whom you might call chatterers. तो बार्बर ने रिप्लाई दिया, यू डू मी एन इंजरी, आपने मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया. मुझे क्या बुलाते हुए? मुझे चैटरर बुलाते हुए, मतलब बोल रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा बात करता हूँ. फॉर एवरीवन सेज आई एम वेरी क्वाइट, सभी बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा शांत इंसान हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ. आई हैव 6 brothers whom you might call chatterers. मेरे 6 भाई हैं, मेरे अलावा मेरे 6 भाई हैं. हाँ, मतलब टोटल बार्बर को मिला के टोटल 7 भाई है और बार्बर को हटा के बार्बर के 6 भाई है. और वो बोल रहे हैं किंग से कि आप उन्हें चैटरर बोल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, मैं नहीं. तो इनके 6 भाइयों का नाम क्या क्या है? बकबोन, बकबरिया, बकबक, अलकूज, अलनशी, शकाबक. वन इज हम्बैक्ड. हम्बैक्ड का मतलब ओल्ड एज में देखते हो क्या होता है, ओल्ड एज में हमारा पीठ यूं झुक जाता है, तो हमारे पीठ पे क्या फॉर्म होता है, एक हम फॉर्म हो जाता है. तो एक वो बोल रहा है मेरा एक भाई क्या है, हम्बैक्ड है. वन इज टूथलेस, मेरा और एक भाई है जिसके मुंह के अंदर एक भी दांत नहीं है, ठीक है, वो टूथलेस है. वन इज हाफ ब्लाइंड, मेरा एक भाई है जिसका एक आंख दिखता है और दूसरा आंख से बिल्कुल कुछ नहीं दिखता, इसीलिए वो हाफ ब्लाइंड है. वन इज क्वाइट ब्लाइंड, मेरा और एक भाई है जो क्वाइट मतलब कंप्लीटली ब्लाइंड, जो कि पूरा अंधा है, उसको दोनों आंखों से बिल्कुल नहीं दिखता. वन इज डेफ, और एक भाई है मेरा जिसको कुछ सुनाई नहीं देता. एंड द अदर हैज डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और एक भाई है मेरा जिसको बोलने में दिक्कत है, मतलब ढंग से वो बोल नहीं पाता. एंड दे ऑल आर ग्रेट टॉकर्स, और ये मेरे जितने भी 6 भाई हैं ना जिनके बारे में मैंने बोला, वो बहुत ही ज़्यादा बात करते हैं. बट आई एम यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, और मैं जो हूँ सबसे छोटा हूँ उन भाइयों में, हमारे फैमिली में. एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पैरिंग विथ वर्ड्स, और मुझे पता है कि मैं बहुत शांत इंसान हूँ, और मैं जब बोलता हूँ तो बहुत सोच सोच के बोलता हूँ. स्पैरिंग का मतलब केयरफुली अपने वर्ड्स को यूज़ करना, ज़्यादा नहीं बोलना. तो वो खुद के बारे में खुद ही तारीफ कर रहा है कि मेरे भाई सब टॉकेटिव है, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, मैं तभी बात करता हूँ जब ज़रूरी है. वो खुद बोल रहा है आई एम स्पैरिंग विथ वर्ड्स, जब भी ज़रूरत है. यू टॉक ओनली व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, ऐसे खुद का तारीफ कर रहा है वो. गिव हिम 3 pieces ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड. सुल्तान को इतना गुस्सा आया. द सुल्तान क्राइड मीन्स, क्राइड का मतलब यहाँ होता है टू शाउट लाउडली बिकॉज यू आर एंग्री. वो गुस्से से बोलने लगे, उसको 3 pieces 3 टुकड़े सोने के दे दो
और उसको भेज दो। लूजिंग ऑल पेशेंस, वो अपना आपा खो गया, सुल्तान अपना पेशेंस, अपना आपा खो गया। एंड सेंट हिम अवे, आई विल नॉट बी सेव टुडे। उन्होंने बोला कि इसको 3 पीसेस गोल्ड दे दो और इसको यहाँ से बाहर करो जैसे भी करके, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये जिस तरीके से बात किए जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि आज मेरा हेड सेव होगा, आज मेरा मुंडन होगा। My master, cried the barber, it was not I who came to seek you, it was you who ordered me to come. So, I will not quit your house till I have saved you. तो बार्बर भी मतलब थोड़ा गुस्सा हो गया और बोला, My master, cried the barber, वो भी थोड़ा गुस्से में बोला, Not I who came to seek you, मतलब find you, मैं आपको ढूंढते ढूंढते आपके राजमहल तक तो नहीं पहुंचा कि मुझे आपका मुंडन करना है। It was you who ordered me to come, आपने ही खुद से मुझे बुलाया है बाल हटवाने के लिए, मुंडन करवाने के लिए। So I will not quit your house till I have saved you, मैं खुद से नहीं आया हूं, आपने बुलाया है मुझे मुंडन करवाने के लिए, तो जब तक मैं आपका सिर का मुंडन नहीं करूंगा तब तक मैं ये महल छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपने बुलाया है, मैं खुद की मर्जी से तो ना आया नहीं हूं। He then began narrating another story, अब ये स्टोरी खत्म हो गया अपने फैमिली के बारे में, अभी वो दूसरा स्टोरी बता रहा है, ये एक स्टोरी टेलर हो गया है अभी किंगडम में, तो ये दूसरा स्टोरी बता रहा है। He then began narrating another story which lasted half an hour, वो कुछ तो राजा को बता रहा था और वो जो भी बता रहा था वो आधे घंटे से उसका चल रहा है, मतलब बक किए जा रहा है। Stop making your fine speeches and let me go quickly. I have an affair of the greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. तो सुल्तान एकदम गुस्से में बोले, Stop making your fine speeches. ये जो प्रवचन तुम दे रहे हो ना तब से, ये प्रवचन देना बंद करो एंड लेट मी गो क्विकली, और जल्दी से जल्दी मेरा हेड को सेव करो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं और रेडी हो सकूं। आई हैव एन अफायर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस, मेरा एक कोई काम है, अफायर मतलब मेरा कोई इवेंट है, काम है जिसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एंड आई हैव टू गो आउट एट नून, नून का मतलब ठीक 12 बजे को हम बोलते हैं नून, आफ्टरनून का मतलब 12 बजे के बाद वाले टाइम को बोलते हैं हम आफ्टरनून। मेरा ठीक 12 बजे एक इम्पॉर्टेंट काम है और मुझे जाना है। सुल्तान ने पूरे गुस्से में बार्बर को बोला कि आपका जो काम है हेड को सेव करना, आप करिए, जल्दी करिए, क्योंकि मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम है 12 बजे और मुझे वहां पे जाना है रेडी होके। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, जब सुल्तान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, बार्बर ने सुल्तान के गुस्से को जब देखा, ओ मास्टर डोंट बी एंग्री, आई विल बिगिन टू सेव यू, बड़े आराम से बोल रहा, ओ मास्टर जी डू नॉट वरी, ज्यादा मतलब गुस्सा भी ना करो, आई विल बिगिन टू सेव यू, इतना गुस्सा क्यों करते हो, गुस्सा मत करो, मैं तो सेव करने आया हूं ना, मैं तो बार्बर हूं, मेरा काम है, मैं कर दूंगा अपना काम। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave. तो जब भी मुंडन करते हैं तो बालों को क्या करते, गीला करते हैं ताकि बाल को सेव करने के लिए इजी हो सके। तो उसने वॉश का मतलब उसने सुल्तान के बालों को क्या किया, गीला किया। एंड बिगैन टू सेव, अभी उसने रेजर पकड़ा सिर में से बाल को सेव करने के लिए। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 टाइम्स, लेकिन जस्ट उसने 4 बार भी उनके सिर पे वो रेजर को नहीं लगाया होगा। ठीक है, उन्होंने बाल तो गीला किया, रेजर को भी उठाया सेव करने के लिए, मतलब 4 बार से भी ज्यादा उन्होंने सिर पे वो रेजर का यूज ही नहीं किया। Saying this, he washed the Sultan's head and began to shave, but he had not touched him even 4 times with the razor. When he stopped and said, तो 4 बार भी उसने रेजर को यूज नहीं किया है बाल हटवाने के लिए, और इमीडिएटली फिर से कुछ उसको याद आ गया, वो बोलने लगा and said, My master, you are acting hastily in this matter. मास्टर जी आप ना बहुत ज़्यादा hastily बिहेव कर रहे हैं। hastily का मतलब होता है hurriedly, बहुत ज़्यादा जल्दी में क्यों हो आप, बाल ही तो हटवाना है ना, मैं हटवा दूंगा, थोड़ा देर हो गया तो ये क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी में हो आप। ऐसे वो फिर से बातें करने लगा अपना काम नहीं करते हुए। Go on saving me, speak no more, ordered the Sultan. तो किंग ने बोला देखो और
ज़्यादा बातें मत करो, जो काम करने आए हो उसको करो. Be patient, said the barber. Perhaps you have not considered well that what you were going to do. तो बार्बर फिर से बोल रहा बी पेशेंट, मतलब इतना क्यों चिल्ला रहे हो. बार्बर बोल रहा बी पेशेंट, थोड़ा मतलब सब्र करो, थोड़ा पेशेंस रखो. और perhaps you have not considered well what you were going to do. शायद आप इसीलिए टेंशन में हो, ऊपर से किंग को बोल रहे हो इसीलिए टेंशन में हो कि आपको थोड़ा आइडिया नहीं है कि आप किसी चीज़ के बारे में ठीक से, शायद आपको नॉलेज नहीं है कि आप क्या करने वाले हो वो आफ्टरनून के टाइम में. नाउ लेट अस लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोज टॉकेटिव बार्बर इन डिटेल. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. Finish shaving at once, the Sultan exclaimed, but instead of doing this, the barber left the Sultan half-shaved to go and see what time it was. My patience is exhausted, the Sultan cried. Be calm, my master, and you shall be saved in a moment, said the barber. And saying this, he continued shaving the Sultan. But while he was doing this, he could not help talking. If you could inform me what this important affair is, I would give you more advice which you might find useful, he said. The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations for them." The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. "Be quick and finish your work," the Sultan replied, "and you shall have all the food that has been prepared for me today. Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends. I have enough food for you," the Sultan exclaimed, but he ordered that all the food prepared for his feast be brought in. The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for dessert also." The Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruit should also be brought in. The barber left off shaving the Sultan to examine each dish separately. This took up half an hour. The Sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, "I never knew that. You are so generous. I wish you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it." तो अभी बार्बर बोलता है, आप कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट के बारे में बोल रहे थे, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ, देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट. आपका जो इवेंट है उसके बारे में मुझे इन्फॉर्म करो और मैं अपना ओपिनियन, अपना राय दूंगा उस इवेंट के बारे में. मतलब ये बार्बर इतना बदतमीज है कि वो मतलब किंग का क्या क्या इवेंट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट मैटर्स है उसको जानना है, और उसको जानने के बाद उसके ऊपर उसको अपना ओपिनियन भी देना है. "Finish shaving at once," the Sultan exclaimed. तो सुल्तान फिर से गुस्से होके बोले कि तब से बोले जा रहे हो फिनिश शेविंग एट वंस, एक बार रेजर चला के सिर पे एकदम पूरा शेविंग करना खत्म कर दो. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव्ड. पर उसने क्या किया, सुल्तान के सिर को हाफ शेव करके छोड़ दिया. मतलब एक साइड पूरा सुल्तान का सिर शेव हुआ है और दूसरा साइड सुल्तान का सिर एकदम मतलब बालों से भरे हुए हैं. The barber left the Sultan half shaved to go and see what time it was. उसके बाद बार्बर सुल्तान को ऐसे ही छोड़ दिया और जाके वो टाइम देख रहा है कि कितना टाइम हुआ है. My patience is exhausted, the Sultan cried. Cried का मतलब आप तकलीफ में आप चिल्ला रहे हो.
सुल्तान बोल रहा है मैं पूरा परेशान हो चुका हूँ और मेरा पेशेंस एग्जॉस्ट हो चुका है, मैं अभी मेरा आपा खो चुका हूँ। Be calm my master and you shall be saved in a moment, said the barber. तो वापस वो आता है टाइम देख के, तो बार्बर बोलता है, नाई बोलता है, किंग मास्टर जी एकदम शांत रहिए, ठीक है, आपको एकदम एक मोमेंट में मैं सेव कर दूंगा, said the barber, and saying this he continued saving the sultan. और इतना बोलते हुए बार्बर ने सुल्तान को सेव करना स्टार्ट किया। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। जब बार्बर सुल्तान के सिर को सेव कर रहे थे वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे बात करते हुए। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी व्हाट दिस इंपॉर्टेंट अफेयर इज आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल, ही सेड। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाय नाउ। वो बोल रहा था कि आप कुछ तो इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में बात कर रहे थे, वो कौन सा इम्पोर्टेंट मैटर है, क्या मुझे आप बता सकते हो? आई वुड गिव मोर एडवाइस विच यू माइट फाइंड यूजफुल। अगर आप मुझे बताओगे वो इम्पोर्टेंट मैटर के बारे में, मैं कुछ एडवाइस दूंगा, मैं अपना राय दूंगा और वो मुझे पक्का पता है कि वो आपको यूजफुल रहेगा, वो आपको काम देगा बाद में जाके। द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप बाई नाउ एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर। सुल्तान एकदम परेशान हो चुके थे क्योंकि ये बार बार पूछ रहा है कि वो इम्पोर्टेंट इवेंट क्या है जो आपने जिक्र किया था। तो सुल्तान एकदम परेशान होके वो इम्पोर्टेंट मैटर क्या है, क्या इवेंट है, वो बार्बर को यानी नाई को बताने जा रहे हैं। ही टोल्ड हिम दैट ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून। तो सुल्तान ने बोला कि फीस्ट का मतलब दावत, नून यानी ठीक दोपहर 12 बजे उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया है, इंपॉर्टेंट लोगों को बुलाया है दावत के लिए। He told him that he was giving a feast to some friends at noon, which was why he was in a hurry to leave. उसके वजह से ही वो बहुत जल्दी में है ताकि वो जाके नहा के वो रेडी हो सके उस फीस्ट के लिए। When the barber heard the Sultan mentioned a feast, he exclaimed, "That reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparations for them." तो जैसे ही सुल्तान ने बोला कि मैंने ऐसे बुलाया है दावत के लिए, बार्बर एकदम चौंक गया। अरे मुझे याद आया, मैंने भी 4 से 5 दोस्तों को परसों मैंने बुलाया है खाने के लिए। और वो बोल रहा है कि I have forgotten and have not made any preparations for them। और वो बोल रहा है मैंने तो आज बुलाया है पर मैं भूल गया हूँ, मैं उनके लिए कुछ भी खाना नहीं बनाया हूँ। द सुल्तान who was at mercy of the barber was ready to do anything to be rid of him। तो अभी सुल्तान किसके ऊपर डिपेंडेंट है? बार्बर के ऊपर, क्योंकि जितना जल्दी उनका सिर का मुंडन हो जाएगा वहां से जाएंगे। एट द mercy of the barber, सुल्तान बोलते हैं कि आपके लिए मैं कुछ भी करूँगा, क्योंकि वो बार्बर से सुल्तान को छुटकारा पाना है। Be quick and finish your work, the Sultan replied, and you shall have all the food that has been prepared for me today। तो सुल्तान बोलते जितना जल्दी हो सके मेरा हेड को सेव कर दो और तुम सेव करके अपना काम करके निकल जाओ। और तुम्हें मैं क्या करूँगा, मैं अपने लोगों को बुला के जो मैंने खाना बनाया है उस खाने को मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम जाके अपने दोस्तों को खिलाओ। Please show me the food so that I may judge if it is enough for my 5 friends। तो अभी वो बार्बर फिर से उसका नौटंकी चालू हुआ। वो बोल रहा है कि अच्छा तो एक काम करिए, आप तो खाना देने वाले हो ना, एक बार मुझे वो खाना दिखाइए, मुझे देखना है, उसको एग्जामाइन, मुझे जांच करना है कि वो जो खाना आपने बनाया है आपके दोस्तों के लिए, क्या वो मेरे दोस्तों के लिए सफिशिएंट होगा, जिन 5 दोस्तों को मैं अपने घर आज बुलाया हूँ खाने के लिए। I have enough food for you, the Sultan exclaimed। सुल्तान फिर से गुस्से में बोलते I have enough food for you, मेरे पास sufficient food है, मैं जितना खाना दूंगा आपको वो आपके 5 दोस्तों को खिलाने के लिए एकदम sufficient है। But he ordered that all the food prepared for his feast be brought in। लेकिन बार्बर ने ऑर्डर किया, हुक्म चलाया कि नहीं, मुझे देखना है जो भी खाना आप अपने दोस्तों को दावत में बुलाकर खिला रहे हो वो सारा खाना लाके दिखाओ, मुझे देखना है कि वो सफिशिएंट है कि नहीं।
The barber looked over the food and said, "This is very good, but I shall want some fruit for dessert also." तो बार्बर अभी एग्जामाइन कर रहे हैं, जो भी फूड रखा गया था उसको देख रहे हैं एकदम बारीकी से सफिशिएंट है कि नहीं। तो सारा फूड को देखने के बाद वो बोल रहे हैं, अच्छा फूड तो ठीक ठाक है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। क्या कमी है? मीठे में कुछ नहीं है, तो कुछ फ्रूट्स चाहिए, कुछ फल चाहिए मुझे डेजर्ट के लिए। But I shall want some fruits for dessert. Also, the Sultan, in desperation, since his head was half shaved, ordered that the fruit should be also brought in. The Sultan in desperation मतलब disappointedly बोलते हैं, अभी मैं उसको खाना भी दे रहा हूँ, ठीक है, इसको फ्रूट्स चाहिए, तो सुल्तान ने ऑर्डर दिया कि जल्दी, एकदम दुखी होकर उन्होंने ऑर्डर दिया कि इनके लिए जल्दी से फ्रूट्स लेके आ जाओ, ताकि वो जल्दी से मेरा हेड सेव कर दे। The barber left off saving the sultan to examine each dish separately. अब बार्बर सुल्तान को सेव करना छोड़ दिया और वो सारे डिशेस को देखने के लिए उसने आधा घंटा वहां पे टाइम वेस्ट किया। The sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. जो सुल्तान थे, जो राजा थे, वो मतलब गुस्से से अपने पैर को ऐसे स्टैम्प मार रहे हैं, मतलब किक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। बट द बार्बर डिड नॉट हरी। इम्पेशेंटली मतलब वो अभी वेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी देर हो चुका है। बट बार्बर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना हाथ को तेज ही नहीं कर रहा है, वो एकदम वैसे का वैसे ही है, रेजर को उठा ही नहीं रहा है वो। एट लेंथ हाउएवर ही अगेन टुक अप द लेजर। बहुत टाइम के बाद, बहुत समय के बाद, क्योंकि उसने आधा घंटा एग्जामाइन करने लगाया और बहुत टाइम तो उसने वेस्ट किया होगा, तो बहुत स्ट्रेच ऑफ टाइम के बाद उसने रेजर उठाया। फिर क्या होता है? He took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried. कुछ मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट उसने रेजर चलाया है सुल्तान के सिर पे, अचानक से वो रुक गया और रोने लगा। After a few minutes of work, he stopped suddenly and cried, "I never knew that you were so generous." अभी उसका रोना चालू हुआ, बोल रहा है कि महाराज मुझे पता नहीं था कि आप इतने जेनरस हो, यानी इतने दयालु हो, इतने काइंड हो। शायद ये आधा घंटा फिर रोएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोज टॉकेटिव बार्बर। एंड नाउ लेट अस लर्न सम ऑफ द न्यू वर्ड्स व्हिच वी केम अक्रॉस व्हाइल लर्निंग दिस प्रोज। चैटरर, समवन हु टॉक्स अ लॉट। चैटरर उसे बोलते हैं जो ज़्यादा बात करता है, जो मतलब बिना वजह बस बोलता है, अपना एनर्जी को वेस्ट करता है। डिफेक्ट, अ फॉल्ट। डिफेक्ट का मतलब कोई गलती, डिफेक्ट का यानी कोई गलती कर देना। ओपिनियन, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंग और सब्जेक्ट। ओपिनियन मतलब अपना राय देना किसी चीज़ के बारे में या किसी इंसान के बारे में। एग्जॉस्टेड, टायर्ड एंड फेड अप। एग्जॉस्टेड का मतलब एकदम थक जाना या इससे और नहीं बात करना या कुछ काम करके थक जाना, टायर्ड और फेड अप। डेजर्ट, अ स्वीट डिश सर्व्ड आफ्टर द मेन मील। डेजर्ट का यानी होता है मीठा, कोई भी मीठा चीज़, चाहे वो खीर हो, कस्टर्ड हो, जो भी हो, वो मेन मील मतलब मेन मील को खाने के बाद उसको सेवन किया जाता है। एग्जामाइन, टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली। एग्जामाइन का मतलब जांच करना, किसी चीज़ को एकदम बारीकी से देखना। टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली। एट लेंथ, एट अ स्ट्रेच। एट लेंथ मतलब एट अ स्ट्रेच मतलब ज़्यादा टाइम लेना। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोज द टॉकेटिव बार्बर इन डिटेल. If you like this prose, give it a like, and if you're watching our channel for the first time, please subscribe our channel to be connected with us and to get the latest notification related to all the educational content of Odisha Board, West Bengal Board, ICSE and CBSE courses. Until then, take care and thank you.